Hello friends, good morning. Welcome you all again my YouTube channel Rao C Forum. Friends, today I am going to start the new topic of the RCC reinforced cement concrete RCC subjects. That's very important subjects for the examinations and various questions that has been asked in various competitive exam of civil engineering. Okay friends, so firstly I have informed you that I have covered various lectures on the limit state of collapse, some assumptions of the limit state, and today I am going to start the special terminology that is used in the design of beams. Okay friends, so let's start it now. And I have covered a lot of lecture. That's why means for examples, assumptions I have already covered, assumptions of the limit state of collapse. Okay friends, stress strain diagram for the HYSD bar, stress strain diagram for HYSD bars, plain bars. Okay friends, under static loading, and one thing that the yield strain of Fe 250 bars, Fe 415 bar, Fe 500 bars all has been completed. If you know the Fy is equals to F415, Fy is equals to 250, Fy equal to 500, then yield strain is equals to I have written I write if Fy has been written as 250, 415 and 500, then what is the value of yield strain? If you know the formula of the yield strain, then yield strain is equals to I write yield is 0.87 Fy upon Es plus 0.002. Okay friends, this is the yield strain formula in tensile steel. Okay friends, if you use the Fy is a 250, then it should be reduced, it should be cancelled out. Okay friends, and for putting the value of Fy in place of for putting Fy 250, then 0.87 Fy 250 divided by Es has been known to all, 2 into 10.5. then what is the value of yield strain is equals to the 0.001, and if you write for the 415 sequentially for 500, then what is the value of this? Is the value of the 4.0038 and 0.0042. okay friends, 0.042. This value is very important for the examination. This has been directly asked in examination. ओके फ्रेंड्स, एग्जामिनेशंस. ओके फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है. मैंने एजम्पशन जो है, जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का जो एजम्पशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, एजम्पशंस को. तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं, उसको हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, ई एस के वैल्यू सबके लिए सेम होता है. ई एस वैल्यू डज नॉट चेंजेस विद द डिपेंड ऑन grade of steel. Is ES value has been written as 2 into 10.5 Newton per mm square. ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी की. पहला हम बात करते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना आता है. ठीक है, देखिए टोटल कंप्रेसिव फोर्स. फ्रेंड्स, आप वीडियो को फास्ट करके आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं स्लो ही पढ़ाऊँगा. ठीक है, बिल्कुल पेशेंस से आप अच्छे से पढ़िए. टोटल कंप्रेसिव फोर्स, इसको हम डिनोट करेंगे सी से. क्या डिनोट करेंगे हम लोग? सी से. ठीक है, आइए देखते हैं, सी से हम डिनोट करेंगे. जैसे कि हम जानते हैं कि जो कि कंक्रीट पे एक्ट कर रहा है, जैसे कि अगर आप बनाएंगे, आप एक टिपिकल सेक्शन लेंगे, बनाएंगे एक टिपिकल बीम,
ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे आपका टेंशन स्टील है, यहाँ पर टेंशन स्टील है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस है मीन्स अबव द न्यूट्रल एक्सिस द जोन इज नोन एज कंप्रेशन जोन and this the area of concrete in compression zone. Okay friends, and here the width of the beam, this is the overall depth of beam and effective depth as the per IS 456 as per IS 456 as per IS 2000. The effective depth is equals to the centroid of the tension steel to the top compression fiber, means this value is the effective depth. This value is the effective depth. Okay friends, so after that this value is the effective depth. If you draw the stress diagram above the concrete zone, this is concrete zone, this is 0.45 FCK cow, and this is तो दिस फ्रेंड्स द इफेक्टिव डेप्थ जो है ये क्या होता है बताया आपको कि ये टोटल जो डेप्थ होता है माइनस क्या होता है इफेक्टिव कवर होता है, क्या होता है इफेक्टिव कवर होता है, ठीक है, माइनस इफेक्टिव कवर, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो ये जो अगर हम अगर डिज़ाइनर अगर देखेगा तो सिर्फ केवल उसका कंक्रीट का सेक्शन ये देखेगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग इसको ऐसे ब्लॉक नुमा ड्रा करें तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ऐसे बनेगा, ध्यान देखिए, ऐसे देखिए ध्यान से, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर इसको हम बनाएं अच्छी तरीके से देखिए तो कैसे बना जाए, ये थोड़ा सा आगे आएगा, ये चलिए यहाँ पे आएगा ये, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, यही है टोटल पार्ट, ठीक, यही है। तो अगर ये कंप्रेसर वाला पार्ट है, देखिए ध्यान से, ये वाला कंप्रेसर पार्ट टोटल है, ठीक है, कंप्रेसर पार्ट यही है। तो ये जो स्ट्रेस और यहाँ पे टेंशन होगा क्या चीज़ स्टील में, तो ऐसे इसको बाहर तरह एक्सेक्टर टेंशन, ये ठीक है, ये टेंसाइल फोर्स है टी, ठीक है, और कंप्रेसिव फोर्स हम यहाँ फाइंड आउट करें कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। इसको हम अलग करते हैं, अलग इसको हम ड्रा करते हैं। तो ये जो डेप्थ है ये एक्सिव है, ठीक है फ्रेंड, ये डेप्थ ये एक्सिव है, और ये जो है ये आपका बी है, ठीक है। और जो स्ट्रेस हो रहा है ये वाला स्ट्रेस, ये वाली वैल्यू ध्यान देखिए, ये वाली वैल्यू क्या है, इसके आ रहा है 0.45 FCK, ये वैल्यू 0.45 FCK है, ठीक है। कैसे मिला पता है आपको कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप कंक्रीट निकालने के लिए जो हम लोग ड्रा करते हैं सेक्शन कर्व, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब भी उसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम डिवाइड करते हैं किससे 1.5 से, ठीक है। फिर अगेन हम करते हैं 1.5 यानी डबल टाइम्स करते हैं ना, 2 टाइम्स। क्यों कि पहला तो आपका फिक्स है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है, बताया आपको वीडियो में, आप देख लीजिएगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है, ठीक है। और सेकंड जो होता है, सेकंड से हम डिवाइड करते हैं जो यहाँ मिलता है 0.6, ठीक है, 1.5 इसलिए कहते हैं। ये क्या होती है, ये होता है साइज इफेक्ट, क्या होता है साइज इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर बात आ जाती है स्लॉन्टरनेस रेशियो की बात आती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ बनता है, अब इसको अलग से एनालिसिस करते हैं कैसे निकलती है वैल्यू, यहाँ ध्यान से समझिएगा, उसको अलग ड्रा करते हैं, ध्यान से देखिए। तो किसी भी फ्रेंड्स क्या होता है ध्यान रखिए, तो अगर हम लोग अगर कोई दो मतलब जैसे अगर ये एक ध्यान रखिए, सॉरी यहाँ पे एक ब्लॉक हम बना रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये ब्लॉक है ऐसे ध्यान रखिए, ऐसे ब्लॉक ये सेम, ठीक है, ऐसे ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ध्यान से, ठीक, ध्यान से। तो ये जो कंक्रीट ब्लॉक है जो भी बनाए हैं हम, ये आपका ये क्या एक्सिव है, ठीक है, ये क्या है एक्सिव है, और ये आपका 0.45 FCK है, ठीक है, FCK है यहाँ पे वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू बी है, क्या है बी है, ठीक है। ऐसे हम इसको एनालिसिस कर लें। तो ध्यान रखिए, अगर इसका हमको क्या करें, अगर हमको टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना हो, सी निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग इसका पूरे का ये एरिया लेंगे, और मतलब
जो भी ये पूरा एरिया लेंगे, ठीक है, इंटू क्या करेंगे बताइए, इस पूरे का एरिया लेंगे इंटू जो बीच की डिस्टेंस है क्या, इंटू बी, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा हमको क्या आएगा, स्ट्रेस ब्लॉक का वॉल्यूम आ जाएगा। क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। क्या चीज़, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक हम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अगर ये देखिए, यहाँ पे ये जो कंप्रेसिव फोर्स है, इस कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, ये कंप्रेसिव टोटल जो है क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो हमको क्या बोला, हमको पूरा कंप्रेसिव फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन क्या लग रहा है, टॉप पोर्शन में लग रहा है, उसको निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। पहले हम ये फाइंड कर लें कि जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है और आपका ट्रायंगुलर मतलब कि जो पैराबोलिक पोर्शन है वो कितने पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान की फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ये वाला, ये मान लीजिए अगर केवल टॉप का ही पोर्शन अगर मतलब कंसिडर करिए, एक्स है, ठीक है, बी है और ये आपका एक्स यू है, ठीक है, टॉप का ही लें, ये न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टॉप का देखेंगे तो ये ऐसे बनेगा, स्ट्रेस ब्लॉक ऐसे बन रहा है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या होता है, पैराबोलिक जाता है अप टू, मतलब पैराबोलिक 0.02 पैराबोलिक होता है। बट आपका यहाँ से आने के बाद क्या होता है, फिर आपका 0.45 क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है एफ सी के पे, ठीक है। अगर इसका स्ट्रेन डायग्राम देखिए, वही स्ट्रेन डायग्राम, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे, मतलब स्ट्रेन डायग्राम ये होता है इससे। तो यहाँ पे 0.002 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जो मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होता है बताइए, मैक्सिमम अप टू कंप्रेशन 0.0035 होता है, ठीक है, क्या होता है 0.035 ये होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक्स यू है, ये एक्स यू है, ठीक है, एक्स यू है। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू, इतनी वैल्यू ए मान लें और नीचे वाली वैल्यू बी मान लें, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एक्स यू हो जाएगा, ध्यान से कि हो जाएगा एक्स यू। अब नीचे देखिए, तो यहाँ से अगर इससे अगर लगाए हम सिमिलर ट्रायंगल, क्या चीज़, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल लगाए हम लोग, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, ये मान लो ओ ले लें, इसको हम लोग ए ले लें, इसको बी हम लोग एज्यूम कर लेना, ये सी हो और ये डी हो, तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा आपका ओ ए अपान 0.0035 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये बी अपान 0.002 हो जाएगा। और ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ एक्स यू है, ठीक है, एक्स यू है, एक्स यू इंटू क्या हो जाएगा 20/35 इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, बी इक्वल टू 4/7, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/7 ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा बताइए, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3/7 एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये मिल रहा वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब टोटल एरिया कैसे निकालेंगे बताइए, एरिया दोनों का, किसका रेक्टेंगुलर पोर्शन का और क्या पैराबोलिक पोर्शन का, दो पोर्शन बनता है। ये देखिए एरिया दो पोर्शन बना रहे हैं, इसको आपको ध्यान से मिलेगा। तो ये जो दो पोर्शन है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ कर लेते हैं, देखिए यहाँ से ये जो पोर्शन ये बन रहा है, ये पोर्शन है, ये यहाँ से, ये थी यहाँ से आपका पैराबोलिक, ये पोर्शन, सॉरी ये पैराबोलिक, ठीक है, ये पैराबोलिक, और ये आपका रेक्टेंगल पोर्शन, ठीक है, ये बन रहा है। तो हम लोग इसका निकालने के एरिया देखिए, ये क्या होता है 0.45 एक्स के, ठीक है, ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है। और ये आपका यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है बताइए, ये वैल्यू क्या है, ये आपका 3/7 एक्स यू है, और सॉरी ये 4/7 एक्स यू है, क्योंकि ये बी है, ये 4/7 एक्स यू है, और ये क्या है, ये 3/7 एक्स यू है, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस ब्लॉक का वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ कर लेंगे, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, ये वैल्यू, ठीक है। तो करिए, टोटल सी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ 1 इंटू एरिया ऑफ 2, ये कर लेंगे, इंटू विड्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे, विड्थ का तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया, और प्लस किसका, पैराबोला का एरिया, कर लीजिए बताइए। तो हियर वी आर गेटिंग विद द, वी आर हैविंग विद द एरिया क्या था, फोर्स मतलब लेंथ इंटू विड्थ होता है रेक्टेंगल का, यहाँ बना लीजिए लेंथ, यानी ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू, तो 0.45 एफ सी के इंटू 3/7 एक्स यू, प्लस इसका करें, ये पैराबोलिक मतलब पैराबोलिक है तो क्या हो 2/3 इंटू एक्स बी इंटू एक्स वाई ना, 2/3 इंटू 0.45 एफ सी के, ये दो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, इंटू ये 4/7 इंटू एक्स यू, ये हो जाएगा।
ये पूरा निकालेंगे इंटू कैसे मल्टीप्लाई बी का करेंगे मल्टीप्लाई, तो सी इक्वल टू क्या हमको मिलता है, सी इक्वल मिलता है 0.36। इसको आप लोग करेंगे तो मिलेगा 0.36, सॉरी 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स, ये मिलता है। ठीक है, ये वैल्यू मिलता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर सेकंड क्या है, सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है, सेकंड ये टोटल टेंसाइल फोर्स, को ऐसे नोट कर लेते हैं, टोटल टेंसाइल फोर्स, ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू हो जाती है फ्रेंड्स, आपको याद रहेगा। फिर वो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, 0.87 FI होता है, ये स्ट्रेस इंटू एरिया AST, तो ये हो जाता है आपका क्या चीज़, मतलब टेंसाइल फोर्स ऑन टेंसाइल स्टील। ओके फ्रेंड्स, ये वाला जाता है। तो जो हम लोग बनाए थे ऐसे, देखिए ऐसे जो बनाए थे हम लोग यहाँ पे, जी यहाँ पे जो स्टील लगाते हैं वो आपका वही टेंसाइल फोर्स है T। ठीक है, यानी टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील और आपका एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। ठीक है, AST क्या है यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, AST क्या है, AST क्या है फ्रेंड्स, AST हो जाएगा एरिया ऑफ टेंशन स्टील। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो कंप्रेशन फोर्स और कैसे निकालते हैं। अब हम निकालते हैं सेंट्रोइड कहाँ एक्ट करता है, वो निकालेंगे। उसको हम लोग सीधे लोग की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू, और कैसे निकालते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कैसे हम बैलेंस डिवाइड कर, उसको हम देखेंगे। ठीक है, आइए बने रहिए चैनल पे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई आपको जल्दीबाजी नहीं है, मैं स्लो ही पढ़ाऊँगा, स्लो ही बताऊँगा, और अगर आपको फास्ट देखना तो आप फास्ट करके वीडियो को प्ले स्पीड आप बढ़ा कर देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट बने रहिए आप। तो हम टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालें, C इक्वल्स टू 0.36 FC के B इंटू XU निकालिए, और T निकालिए हम लोग 0.87 FY इंटू AST, एरिया ऑफ टेंशन स्टील, ये निकालिए। अब देखिए ये वाला होगा। अब जो एक्ट करता है, यानी जो ये फोर्स टेंसाइल और टोटल कंप्रेसिव फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट करता है, उसको निकालेंगे। तो उसको निकाल के मैं आपको फ्रेंड्स बता दे रहा हूँ कैसे आप निकालेंगे। कि जो ये ब्लॉक बन रहा है, देखिए ध्यान से, ये जो ब्लॉक बन रहे हैं आपके, ठीक है, ये जो स्ट्रेस डायग्राम बन रहा है कंक्रीट का, यहाँ तो क्या है, टी मतलब 0.02 तक क्या है कांस्टेंट आएगा, मतलब यहाँ पे 0.02 पे फिर उसके बाद पैराबोलिक हो जाता है। ठीक है, ऐसे पैराबोलिक, ये ऐसे करके ऐसे आपका ऐसे होता है। ठीक है, ये 0.87 FY इंटू AST होता है। ठीक है, ये पूरा कंक्रीट का पोर्सन है। ठीक है, ऐसे ये पूरा कंडक्टर से हो जाता है, ऐसे पोर्सन होता है। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है 0.45 FCK होता है, और ये वैल्यू होती है आप बताएं हमको 3/7 XC होता है, और ये वैल्यू क्या होता है 4/7 XC होता है। ठीक है, ये होता है वैल्यू 3/7 XC और 4/7 XC होता है। अब वहाँ से हम लोग जो हम पता है आपको, अगर इसका सेंट्रोइड निकाल कैसे निकालेंगे आप, इसका हमको पता है कि y बार इक्वल टू कैसे निकालते हैं आप, A1Y1 प्लस A2Y2 अपन A1 प्लस A2 ये होता है। एरिया तब निकाल लें, A1 A2 निकाल लेंगे, यहाँ पर रख के आपको y बार निकालेंगे। तो जो y बार जो मिलेगा फ्रेंड्स, y बार में क्या होता है, मिलता है आपको 0.416 XU। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, रटा नहीं फ्रेंड्स, आप बिल्कुल रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सेंट्रोइड ऊपर से चेक करेंगे, ऊपर से आप निकालेंगे, तो आपका जो इसका लेंथ है इसका क्या हो, 3/7 का हाफ हो जाएगा, 1/2 रेक्टेंगुलर है XU, और इसका निकालें तो ये आपका 3/7 XU हो जाएगा, 3/7 XU, और प्लस आपका इसका सेंट्रोइड यहाँ से निकाल लेंगे इसका सेंट्रोइड। ठीक है, तो इधर क्या होता है 5/8 होता है, 5/8 आप XU के वैल्यू क्या है, मतलब 4/7 XU यहाँ से निकाल के यहाँ पर रखेंगे वैल्यू A1 y तो आपको ये मिलेगा वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं राउंड ऑफ करके, y बार इक्वल टू 0.42 XU। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग नोट कर देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये जो y बार निकलता है, ये निकलता है आपका, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन C फ्रॉम द कंप्रेशन फाइबर टॉप से। ठीक है, तो ये मान लीजिए C यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ऐसे ये C यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो C यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ऐसे ये एक्ट कर रहा है, ये C एक्ट कर रहा है, और ये क्या, ये आपका T एक्ट कर रहा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लीवर आर। क्या बोलते हैं, लीवर आर। यानी जो अगर लीवर आर आपको डिफाइन करना तो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द टोटल कंप्रेसिव फोर्स एंड द टोटल टेंसाइल फोर्स इज नोन एज लीवर आर। ठीक है, इसकी वजह कैसे निकलती है, ये पूरा लेंथ क्या है, ये पूरा बताइए, ये पूरा क्या है, ये पूरा स्मॉल डी होता है, क्योंकि सेंट्रोइड से कि हम ले लिए हैं। ठीक है, सेंट्रोइड तक लिए हैं, और ये वाली हमको मिल गया अभी, ये वाली जो टॉप से लग रहा है, टॉप से इतना ही कर रहा है,
तो लीवर आर्म के लिए क्या होता है, लीवर आर्म बराबर हो जाता है, देखिए फ्रेंड्स, लीवर आर्म जेड इक्वल टू हो जाता है आपका, बताइए ये डी मान सी आपका वैल्यू, तो क्या होता है डी माइनस 0.42 एक्स ये होता है अब लिखवा लीवर आर्म की वैल्यू। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये वैल्यू हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ बन गया। तो हम देख लिए, हम लोग टी भी निकालेंगे, ये देखिए सी निकल गया हम लोगों का, टी निकल गया और ये लीवर में निकल गया। अब हमको निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ भी हम बता दें आपको। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसको हम देखेंगे, उसके बाद आपका ये वैल्यू बन के आता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं टॉपिक। ये पहला लोग कंप्रेसिव फोर्स, दूसरा टेंसाइल फोर्स, तीसरा लीवर आर्म हो गया, चौथा हम लोग देख लेते हैं पॉइंट। चौथा हम देखते हैं डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। क्या चीज़, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को देख लेते हैं। तो फ्रेंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। अब हम क्या करेंगे कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम लोग जो टोटल ये कंप्रेसिव फोर्स है और टोटल टेंसाइल फोर्स उसको हम इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है टोटल, ये कंप्रेसिव फोर्स जो लग रहा है, और टेंसाइल है तो टेंसाइल इधर धक्का देगा, मतलब पुश करेगा, और कंप्रेसिव फोर्स अंदर कर रहा था, ऐसे आप देखे थे इस वाले डायग्राम देख ही रहे हैं आप। तो यहाँ से ये वाला ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे लगा, ऐसे बेंड हो रहा है, तो ऐसे करके यहाँ पे करेगा। तो ये जो जहाँ पे ये मतलब एक लाइन बनती है, एक्सिस बनती है, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हम टॉप से निकाल रहे हैं, टॉप से वैल्यू एक्स की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये मानते हैं, मतलब अदर हम लोग बैलेंस सेक्शन में चेक करेंगे कि दोनों फोर्स बराबर हो तो क्या होगा। तो अगर सी बराबर टी करेंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, बताइए सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है 0.36 एफ सी के। ठीक है, एफ सी के बी इंटू एक्स सी होता है, और ये होता है 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, यह होता है। यहाँ से एक्स सी क्या होगा फ्रेंड, बताइए एक्स सी बराबर हो जाएगा 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.36 एफ सी के इंटू बी, ये वाले तो मिलता है हमको एक्स यू। ठीक है, एक्स यू। अब जब ये एक्स यू मिल जाता है तो यहाँ से एक्स यू की वैल्यू हम लोग कंपेरिजन करते हैं किससे, एक्स यू लिमिटिंग से। अब एक्स यू जो लिमिटिंग से कंपेरिजन करते हैं, अगर इसी एक्स यू अगर एक्स यू लिमिटिंग के बराबर हो जा रहा है, एकदम सेम एग्जैक्ट हो रहा है बराबर, तो वहाँ पे अब लिखते हैं हम लोग बैलेंस सेक्शन है। जो सेक्शन डिजाइन हो रहा है वो क्या है, बैलेंस सेक्शन है। क्या है, बैलेंस्ड सेक्शन है, बैलेंस्ड सेक्शन है। मतलब कि जो स्ट्रेस इन स्टील एंड स्ट्रेस इन स्टील एंड स्ट्रेस इन कंक्रीट दोनों में मतलब अप टू मतलब लिमिटिंग कंडीशन तक पहुंच गया। ठीक है, एंड पूरा यील्डिंग कर रहा है दोनों। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ये रियल मतलब रियल तो है नहीं। ठीक है, ये ऐसे मतलब आइडियल कंडीशन आता है, और आइडियल पॉसिबल नहीं होता कभी, आप जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आइडियल मतलब नो पॉसिबल। ठीक है, कभी भी। अब देखिए अगर एक्स यू की वैल्यू, एक्स यू अगर आपका लेस देन एक्स यू लिमिटिंग आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अंडर रीइंफोर्स्ड, क्या होगा, अंडर रीइंफोर्स्ड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और अगर एक्स यू की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग हो जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है, दिस इम्प्लाइज टू द ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन ये हो जाएगा वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू मिलता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो मिल गया हमको, ये फार्मूला हमको यूज़ करना है। देखिए ये फार्मूला, तो हम लोग अल्टीमेट वाला जो लिमिटिंग होता है उसको निकालते हैं। ठीक है, और लिमिटिंग वाली को, तो लिमिटिंग वाले हम चेक करते हैं कैसे है। अब लिमिटिंग वाले चेक करने के लिए क्या होगा, जो स्ट्रेन इन स्टील होगा, ठीक है, वो स्ट्रेन इन कंक्रीट करेंगे। यानी कि हमको पता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ आप जो कंक्रीट होता है इग्नोर कर दिए हम, तो हम लोग मतलब पूरा जो आपका स्ट्रेन है किसका, कंक्रीट का, भी वो कौन वो करेगा, वियर करेगा, वो वियर करेगा स्टील ही। ठीक है, स्टील को पूरा स्ट्रेन प्रोवाइड करेगा, और उसको हम बोलते हैं क्या चाहिए, स्ट्रेन कैपेबिलिटी, क्या बोलते हैं, सॉरी स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको हम, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। ठीक है, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस था वो वैल्यू क्या था फ्रेंड्स, उसको देख लेते हैं। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो वैल्यू कैसे निकलता है उसको हम चेक कर लेते हैं। वहाँ पे हम चेक करने के लिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, ठीक है, कि कैसे हमको मतलब पढ़ना है। ठीक, उस चीज़ को कैसे देखना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो एक्स यहाँ पे जो बनता है, जो स्ट्रेन डायग्राम देखें हम लोग, स्ट्रेन डायग्राम तो ऐसे कुछ बनते हैं, ध्यान रखिए स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू क्या 0.0035 होता है, ये वैल्यू आपको क्या है, एक्स यू है यहाँ पे, ये
एक्सयू है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन आपका क्या होता है, स्ट्रेन दोनों का लीनियर होता है, ठीक है, सॉरी ये होता है, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर हो जाता है, ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू होता है स्ट्रेन इन जो कंक्रीट होता है वो बाबा स्ट्रेन इन आपका स्टील, हम दोनों को बराबर होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होगा डी माइनस एक्सयू, सिंपल। अब दोनों को अगर हम सिमिलर ट्रायंगल मतलब क्या कहें इक्वेट कर दें तो क्या मिलता है हमको, बताइए, स्ट्रेन इन स्टील डिवाइड बाई जो हो जाएगा आपका, ये देखिए 0.0035 इज इक्वल्स टू 0.035 आपका, फिर डी माइनस एक्सयू डिवाइड बाई एक्सयू। तो यहाँ से हमको स्ट्रेन स्टील मिल जाता है हमको 0.0035, ठीक है, डी अपॉन एक्सयू माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो स्ट्रेन इन स्टील है इस ग्रेटर देन क्या होना है, जो आपका स्ट्रेन है यील्डिंग से उससे अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग फुट यूटिलाइज कर पाएंगे स्टील के स्ट्रेंथ को, और हम लोग ये भी होगा कि हम मालूम चला कि अगर कंक्रीट फेल हो रहा है, स्टील फेल हो रहा है, स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, तो हमको वार्निंग भी मिलता है। तो हम लोग एज करते हैं कि स्टील आपका स्टील जो है कि इससे यील्ड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब स्टील हमने अभी निकाले हैं ये वैल्यू, तो ये वैल्यू को हम किससे हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ से बराबर कर देंगे, तो वहाँ पे जो वैल्यू हमको मिलता है उसको हम चेक कर, उसको हम कैसे करें, ये वैल्यू इसको होगा 0.0035, ठीक है, डी अपॉन एक्सयू माइनस 0.0035। अब यील्ड वाली वैल्यू क्या होती है बताइए, यील्ड वाली होती है 0.87, सॉरी 0.87 FY अपॉन ES, ठीक है, ES प्लस 0.002 होता है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ से वैल्यू निकालें, इसको इधर कर दिया, ऐड हो जाएगा 0.5 हो जाएगा 55, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सयू अपॉन डी, ठीक है, इज लेस देन 0.0035, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.0055। अब यहाँ से हम एक्स वैल्यू लेस देन क्या ना, अगर एक्स वैल्यू लेस देन ये पूरा अगर के मान लेगा इसको, तो के इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, के इंटू डी हो जाएगा पूरा वैल्यू, ठीक है। और इसी के इंटू डी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सयू लिमिटिंग, इसको के इंटू क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सयू लिमिटिंग, इसी को बोलते हैं हम लोग। ये चीज़ आप लोग समझिएगा। अब ये वाला बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली के पूछता है एग्जाम डायरेक्टली, ठीक है, तो आप लोग इसको भी तैयार रखिए, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे देख लीजिए यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है जो के की वैल्यू हम लोग नोट किए हैं वो क्या है, के की वैल्यू बताइए, के की वैल्यू हो जाएगा, अभी हम बताएं आपको, इधर देखिए, इधर के की वैल्यू ये तो हो जाएगा 0.0035 डिवाइड बाई 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.0055। यहाँ पर अब ये जो ES इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या मिलेगा हमको, मिल जाएगा के बराबर 700 अपॉन 0.87 FY प्लस 1100, ये हमको मिलता है के की वैल्यू। अब इसी में FY को हम चेंज करते हैं, सॉरी FI इसी में चेंज करते हैं, तो हमको जो के होता है 0.48, 0.53, 0.46 ये मिलता है, ठीक है। तो इसको अब एक्सयू लिमिटिंग हमको याद करना है, और याद क्या करना है, यही फार्मूला इसका, इसको आप लोग याद, इसको आप समझिएगा। एक टेबल बनाते हैं हम लोग, FI की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक्सयू लिमिटिंग बाई डी यानी कि के। अब अगर हम लोग 250 लेते हैं तो यहाँ 250 रहेंगे, तो क्या मिलता है, फिर मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूँ 250, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, तो 700 ठीक है फ्रेंड्स, 700 डिवाइड बाई 0.87 250 प्लस 1100, ठीक है, ये ठीक है 0.53, तो 250 के लिए क्या होता है 0.53, ऐसे आप रख के चेक कर लेंगे 0.53, और यहाँ पे 415 के लिए आप चेक कर लेंगे, और आपका 500, तो इसके लिए आपको सबको याद होता है 0.48 होता है, ठीक है, और आपका इसके लिए 0.46 होता है, क्या होता है 0.46। तो ये वाले डायरेक्ट एग्जाम पूछता है कि FE415 के लिए के लिए क्या होती है, इसके लिए क्या होता है एक्सयू लिमिटिंग, तो एक्सयू लिमिटिंग यहाँ डी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक्सयू लिमिटिंग मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीवर आर्म हम देख लिए,
अब हम लोग सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पे आएंगे। तो एग्जाम में जो जो मैंने बताया पॉइंट उसको आप पढ़ समझिएगा कि मैं क्या क्या बताऊँ। मैं इस वाले मतलब पेज में क्या बताऊँ, ये आपकी ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू बात करना कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स। उसके बाद ये वाला लीवर डेप्थ ऑफ न्यूट्रेक्स ये है, मतलब वो पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द टोटल कंप्रेसिव फोर्स है। और ये लीवर आर्म हो गया, इसको माइनस कर दिया एक्सिव को, इसको फिर यहाँ पे इसको बराबर करने के ऐसे मोमेंट जॉइन करती है। ये वाली जो कटती है ये वाली, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वही होता है जहाँ पर दोनों को इक्वल कर देते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद आपको समझना है। ये 0.87 कुछ है नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल प्रैक्टिस ही है। 0.87 यहाँ पे बैलेंस सेक्शन होता है, यहाँ पे आइडियल कंडीशन में, और ये पे ऐसे ऐसे आपको याद करना है, ठीक है, समझना है। और यहाँ पे करिए यहाँ वैल्यू, और ये वाला तो एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछते, ध्यान रखिए ये वैल्यू एग्जाम में डायरेक्ट, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू 0.3035 0.87 अपॉन ES प्लस 0.055। ये वैल्यू चेंज करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर चेंज कर देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टील के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बताइए, ठीक है, स्टील के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंक्रीट के लिए। दोनों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या क्या होता है, तो दोनों का जो कंक्रीट का पता है सबको फ्रंट क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कंक्रीट क्या होता है बताइए, कंक्रीट का होता है 1.5 और स्टील का होता है फ्रेंड्स बताइए 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 1.15। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और कैसे आपको समझना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं। ओके चलिए, तो ये वाली आज एक वीडियो है पूरा एनालिसिस है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे हम लोग निकालते हैं मोमेंट। ध्यान कि मोमेंट निकाल क्या करेंगे हम लोग, ये C इंटू जेड कर देंगे, T इंटू जेड कर देंगे, तो सिंपल है बात है, क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलता है। क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो फैक्टर्ड होगा कि अनफैक्टर्ड होगा कि सर्विस होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए इस चैनल पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए। बाय, टेक केयर।